ہم نے مقررہ تعداد سے قریباً 3 گنا زیادہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان ہیلی کاپٹروں میں ٹھونس دیا اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر زمین سے اٹھنا شروع کیا۔ ہیلی کاپٹروں نے اس وقت پرواز کے لیے پر تولے تھے جب چاروں اطراف تیز اور مسلسل فائرنگ کے ساتھ ساتھ بڑی زوردار ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ ہمارے بچے اور ہماری مائیں بہنیں دشمن کی براہ راست فائرنگ کی زد میں تھے۔ ان کی زندگیوں کا تمام تر انحصار خداوند تعالیٰ کی ذات کے بعد اب اگر کسی پر تھا تو آرمی ایویشن کے شیر دل کوہ شکن شاہینوں پر، جن کے کندھوں پر حالات نے انتہائی نازک اور انتہائی مشکل ذمہ داری ڈال دی تھی۔ انہیں مناسب بلندی حاصل کرنے کے لیے اونچی اڑان کرنا تھی، جس کے لیے ایک بڑا چکر فضا میں لگانا ضروری تھا، جبکہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ ان کے بلند ہوتے ہی ان پر آگ برسنے لگتی۔ ان خطرناک اور جاں گسل لمحات میں ہمارے 2 شاہین مغرب کی جانب سے نمودار ہوئے۔ وہ دور سے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے 2 بڑے بڑے عقاب آپس میں پر ملائے اڑتے چلے آ رہے ہوں۔ اپنے ہدف کے نزدیک آ کر انہوں نے اپنی مخالف سمتوں میں قلابازی لگا کر جھپٹنے کا انداز اختیار کیا اور ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں قریباً ٹیڑھے ہو کر ان کی گنز نے باغیوں پر قہر برسانا شروع کیا۔ اپنے 2 چکر مکمل کر کے وہ آسمان کی بلندیاں چھونے لگے۔ یہ ہیلی کاپٹروں کو اشارہ تھا کہ جالے ساتھیوں، بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹ دور کر دی ہے۔ ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ بھی انتہائی تربیت یافتہ اور ہوشیار تھے۔ انہوں نے ذرا سا موقع ملتے ہی مناسب بلندی حاصل کر لی اور مشرق کی جانب پرواز کرتے دشمن کی گولیوں کا منہ چڑھاتے نکل گئے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نقطوں کی شکل اختیار کرتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کی محفوظ روانگی کے بعد ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمارا ریسکیو آپریشن کامیاب کیا۔ اب ہم کم از کم اس پوزیشن میں ضرور آ چکے تھے کہ کھل کر دشمن سے 2 ہاتھ کر سکیں۔ اب شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا۔ اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی فائرنگ میں بھی شدت پیدا ہو رہی تھی۔ دشمن پہلے ہی سے ہمارے کیمپ کے گردا گرد خندقوں میں مورچے قائم کیے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف اس کی تعداد ہم سے کم از کم 7-8 گنا تھی۔ ہماری مورچہ بندیاں ان کے علم میں تھیں، جبکہ ابھی تک ہم ان کی پوزیشن کا تعین بھی نہیں کر سکے تھے۔ بس اندازے ہی سے ساری کارروائی کی جا رہی تھی۔ ہمارے 2 اطراف میں جنگل اور اونچی فصلیں اور باقی دونوں اطراف رہائشی مکانات تھے۔ دشمن ان محفوظ آڑوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، مگر ہمیں شہری آبادی کا خیال رکھنا تھا۔ ہم دشمن کی فائرنگ کے جواب میں کم از کم رہائشی علاقوں کی جانب فائرنگ نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں ہمارے لیے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ صبر و تحمل سے اپنی کمین گاہوں میں دبک کر دشمن کے کھلے حملے کا انتظار کریں اور اس کے سر پر پہنچنے کے بعد ہی اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ اس سنگین صورتحال کے خاتمے کے لیے سیکشن کمانڈو نے ایک بنکر میں میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جوانوں کو صبر کی تلقین کی جائے تاکہ وہ جوش میں آ کر زیادہ فائرنگ نہ کریں۔ تعداد کی کمی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ خالی مورچوں کو اس ترکیب سے باری باری استعمال کیا جائے کہ دشمن کو ہمارے درمیان کہیں کوئی خلا گیپ نہ ملے جس سے گزر کر وہ کیمپ میں داخل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے 4 سرفروشوں کو او پی ڈیوٹی کے لیے تیار کیا اور وہ چاروں اندھیرا پھیلتے ہی مختلف سمتوں میں ہمیں فی امان اللہ کہہ کر کیمپ سے باہر دشمن کی مورچہ بندیوں کی طرف رینگ گئے۔ جلد ہی ان کی طرف سے نشانے ملنے لگے اور ہم نے اپنی واحد میڈیم گن سے ان کی ہدایت پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس گن کو ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا تھا تاکہ دشمن کے اچانک چڑھ آنے کی صورت میں اسے بروئے کار لایا جا سکے۔ رات 8 بجے کے نزدیک لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی کیونکہ ابھی تک دشمن نے ہمیں ترنے والا ہی سمجھ رکھا تھا۔ اب جب ان پر 25 پاؤنڈ کے گولے پھٹے تو ان کی گویا آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے ہمیں مزید مہلت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیے بغیر مارٹروں سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی کیونکہ دشمن کے نقطہ نظر اور جنگ کی حکمت عملی کے مطابق بھی ہمارا ٹارگٹ اس ہتھیار کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ دشمن کی فائرنگ میں شدت آتے ہی SSG کے گبرو 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بٹ کر ان کے مورچوں کی طرف بڑھنے لگے اور ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح دشمن کے درمیان خلا ڈھونڈ کر وہاں سے نقب لگائی جائے۔ اللہ نے مدد کی اور کچھ جوانوں کی قربانی دے کر ہم نے کچھ ایسے خلا تلاش کر لیے جہاں سے دشمن پر بآسانی فائرنگ ہو سکتی تھی۔ یہ برابر کے خطرے والی پالیسی تھی۔ کبھی کبھی انتہائی نامساعد حالات میں کمانڈروں کو ایسی پالیسیاں بھی اپنانا ہوتی ہیں جہاں مرنے اور مارنے کے برابر کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اگر ہم اچانک دشمن کے درمیان پہنچ کر اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے تو اسے بھی یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ اس مخصوص ایریا کو جہاں اسے ہمارے جوانوں کی موجودگی کا احساس ہوتا چاروں اطراف سے فائرنگ کر کے تہس نہس کر دیتا، اور ایسا ہوا۔ لیکن نتائج 80% ہمارے حق میں اور بمشکل 20% دشمن کے حق میں گئے۔ ایک طرف تو انسان پر آگ برسانے میں مصروف تھا، دوسری طرف مشیت الہی نے غضب کی شکل دھاری۔ شمالی جانب سے آسمان پر اچانک سیاہ گھٹائیں امڑنے لگیں، جوش غضب سے آسمان پر بجلیاں کوندنے اور بدلیاں دھاڑنے لگیں۔ کچھ تو گولہ باری نے اور
कुछ आसमानी बिजलियों ने ऐसा समा बांधा कि आसमान तांबे की तरह सुर्ख होने लगा। उसके साथ ही मूसलाधार बारिश हो गई। देखते ही देखते सारा इलाका जलथल हो गया। बौछार इस शिद्दत की थी कि जवानों के लिए कदम जमा कर ठहरना मुश्किल हो रहा था, मगर खैरियत गुजरी कि हमारे पास हथियार ऐसे थे जिन पर रुकावटें असरअंदाज न हो सकती। उस लम्हे जंगे खंदक याद आ गई और मेरे दिल ने गवाही दी। अल्लाह ताला ने आज फिर घोड़ों वाली मजबूत फौज के मुकाबले में आसमान से हमारे लिए मदद बहम पहुंचाई है। दुश्मन और आसमानी कहर के दरमियान अब बराह रास्त महाज आराई शुरू हो गई थी। तैश में आया हुआ दुश्मन इस गैबी इशारे को अपनी मौत का सामान जानकर भागने की बजाय झुंझुलाकर अपनी गोलाबारी में शिद्दत पैदा करता जा रहा था। इस तरह हमें ये फायदा मयसर आ गया कि अब हमें वेरी लाइट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रही थी। हमारे शेरदिल ओपी दुश्मन की गन को रोशनी में देखते ही उसके निशाने का तयन कर लेते और इतनी सही और मौसर फायरिंग करवाते कि 1-2 राउंड चलने के बाद दुश्मन के इस मोर्चे का सफाया हो जाता। मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार छक्कड़ चलने से न सिर्फ ये कि हमारे मोर्चे पानी से भर गए थे और कमर तक पानी में खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करना जवानों के लिए दूभर हो रहा था, बल्कि किसी दरख्त के तने की ओट भी हम नहीं ले सकते थे। किसी भी लम्हे कोई दरख्त टूटकर हम पर गिर सकता था। इन जवानों के जिस्मों के निचले हिस्से शल हो रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत बुलंद थी, हौसलों में ताजगी थी, उनके इरादे जवां थे। पिछले 22 घंटे से ये जियाले मुसलसल दुश्मन की गोलाबारी की जद में थे और अब तक दुश्मन उन पर करीबन 2000 मार्टर गोले फेंक चुका था, लेकिन उनका बाल तक बीका न कर सका। निस्फ शब के बाद जब बारिश की रफ्तार में कुछ कमी आ गई तो कमांडोज को महासरे से अचानक निकल कर दुश्मन पर बर्क रफ्तारी से झपटने का हुक्म मिला। ये हमारी अस्करी जिंदगी के अहम तरीन लम्हात थे। उस लम्हे हमारे तमाम स्टाफ बारी बारी हमारे सामने सवाल बनकर खड़े हो गए। साहब, हमने कभी तुम्हारा कदम गलत नहीं पड़ने दिया। तुम्हारे साथ जंगलों में सरखपाई की है साहब, तुम्हारे संग संग सहराओं की रेत फांकी है साहब, तुम्हारी मैयत में सरबफलक पहाड़ियां सर की हैं। हर कोई अपनी अपनी तरबियत याद दिला रहा था। फिर वो सब यक ज़बान होकर चिल्लाए, हमारी मेहनतों का सबर दोगे ना साहब। मैंने दिल ही दिल में उन सब से अहद किया, नहीं स्टाफ नहीं, वो वक्त कभी नहीं आएगा जब हम जीते जी कभी गर्दन झुकाकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। बारिश में मुसलसल भीगने से हमारी वर्दियां ही बोझल नहीं हो रही थीं, जिस्म का बंद बंद भी पानी में खड़े रहने से टूटने लगा था। और उस रात चश्मे फलक ने हैरत से उन 150 सरफरोशों का नजारा किया होगा जो बारिश में भीगते नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर पुकारते दुश्मन पर दीवाना वार टूट पड़े थे। हमारा चार्ज इतना अचानक, भरपूर और तेज था कि दुश्मन बौखला गया। उसने चंद मिनट तक जमकर मुकाबला करने की हिम्मत भी न की और दुम दबाकर भाग निकला। सुबह तक सिलहट की फजाएं उनके नापाक वजूद से पाक हो चुकी थीं। भागता हुआ दुश्मन बेशुमार असलहा और गोला बारूद, सैकड़ों जख्मी कैदी और सैकड़ों लाशें हमारे लिए छोड़ गया। सुबह हमने अपने जवानों को एक एक मग चाय का जामे हयात पेश किया, जिसने उस वक्त खासी मसीहाई की। हम 2 घंटे सस्ताने और शुहदा की तदफीन करने के लिए मिले। उसके बाद सिलहट के मजाफाती इलाकों में फैलकर हमने दुश्मन के भगोड़े और छुपे हुए तकरीबकारों को घेरा डालकर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। करीबन 1 हफ्ते के बाद हम वापस ढाका जा रहे थे। मेस में पहुंचा तो 4-5 खतूत मेरे मुंतजिर थे जो बड़ा लंबा सफर करके मुझ तक पहुंचे थे। सबसे पहले जिस खत पर मेरी नजर पड़ी उसकी तहरीर कुछ अजनबी सी लगी, इसलिए मैंने वही खत पहले खोला। लिखा था, फौजी साहब, ये खत मैं अहमद अली से लिखवा रही हूँ। मैंने आज तक कोई खत न किसी को लिखा है न लिखवाया। लिख तो मैं सकती ही नहीं और लिखवाने की कभी नौबत नहीं आई, लेकिन अहमद अली के घर अखबार आता है और रोजाना वो कोई न कोई परेशान कुन खबर मुझे सुना देता है। चाचा और चाची के पास रोजाना सुबह शाम तुम्हारी खैरियत मालूम करने जाती हूँ, वो भी अब कुछ चुप चुप से रहने लगे हैं। समझ नहीं आती इन सब लोगों को क्या हो गया है। मेरे फौजी, जब्त की भी कोई हद होती है। आज जब मैंने अपना ट्रंक किसी काम से खोला तो उसके एक कोने में रखी वो अंगूठी दिखाई पड़ी जो तुमने फौजी इम्तिहान देने के लिए जाते वक्त मुझे पहनाई थी। जाने क्यों मुझे रोना आ गया। तुम तो जानते हो मैं रोती कभी नहीं। पिछले दिनों हमारी गाय चोरी हो गई, वही डिब्बेदार वछेरी जो मैंने खुद लेकर पाली थी। अम्मा 2-3 रोज तक उसकी याद में रोती रही। उसने तो इतना गम किया कि रोटी तक को हाथ न लगाया, लेकिन मुझे कुछ न हुआ। मैं गो बड़ी पत्थर दिल थी, लेकिन उस रोज मैं फूट फूट कर रोने लगी। और हाँ, वो जो तस्वीर तुमने भेजी थी ना अपनी चाची को, वो मैं परसों चोरी छुपे रात को ले आई थी। जब माँ सो गई तो मैं कितनी ही देर तक लालटेन की रोशनी में उसे देखती रही। अल्लाह, तुम कितने बदल गए हो। क्या दाढ़ी रख ली है तुमने,
तुम तो रोज शेव किया करते थे, कुछ कमजोर भी नजर आ रहे हो। अच्छा फिक्र न करना, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा घी जोड़ रखा है। वो नीली बार वाली जो भैंस थी ना, वो बस माँ ने मेरे नाम ही लगा दी है। कहती है शादी पर तेरे साथ कर दूंगी। उसके मक्खन का घी बनाकर मैंने तुम्हारे लिए रखा है। ये बताओ तुम कब आओगे? चाची मुझे कहती है कि तुम अगले महीने जरूर छुट्टी पर आओगे, जरूर आना। इस दफा बाबा करम अली के अमरूदों पर बड़ा जोबन है। वो जो लीची का दरख्त लगाया था ना तुमने हमारे आंगन में, उस पर भी खूब फल आया है, बड़ा मजा रहेगा। अच्छा सच सच बताना, कभी तुमने भी मुझे याद किया है या नहीं? काश तुमने मुझे लिखना भी सिखा दिया होता, तुम्हें खुद खत लिख सकती, खुलकर दिल का हाल बयान कर सकती। मैं ही क्या, सारा गांव तुम्हारे लिए दुआएं मांगता है। मेरे फौजी, तुम सैकड़ों मील दूर जरूर हो, लेकिन मेरे दिल से दूर कभी नहीं हो सकते, है ना? तुम्हारी रज्जो। रजिया खुदा की पनाह। मैंने तो उसे भुला ही दिया था, बिल्कुल खुशगवार ख्वाब की तरह जो कुछ अरसे तक तो याद रखे जाते हैं, फिर इंसानी हाफिजे से हरफे गलत की तरह मिट जाते हैं। लेकिन आज जब उसका लिखवाया हुआ खत मिला तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। अपना गांव, अपने खेत, अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपने मवेशी, अपने बागात, पगडंडियां, नहर, टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते, सावन भादों की अव्वलीन बारिश, जमीन से निकलती मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, हरियाली, घर का पिछवाड़ा, उसके आंगन में लगा लीची का बूटा जो मैं बड़े शौक से शहर से खरीद कर लाया था, जिसे मैंने और रज्जों ने मिलकर जमीन में गाड़ा था। अपनी मोहब्बत की अव्वलीन निशानी और पहली मोहब्बतों के दरख्त पर फल भी आने लगा था। जस्त के बर्तन में दूध की धारों की खनक और रज्जों के हाथ, एक एक करके जैसे सब कुछ मुझे याद आ गया। बेख्तियार मेरी आंखों के कोने भी गए तो रज्जो अब तक मेरी मुंतजिर है। खत की तहरीर में से उसकी शबीह उभरी, आंखों में इंतजार की जोत जगाए पंजाब की अल्हड़ मुटियार जो मुझसे पूछ रही थी, फौजी कब लौटोगे? फिर जैसे अचानक ख्वाब का मंजर बदल गया। रज्जो की परछाइयां लर्जी और उन पर आंसा गालिब आ गई। बड़ी मछली ने छोटी मछली को निगल लिया। बंगाल की साहिरा अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ अपना जादू मुझ पर फूंक चुकी थी। मैं बेबसी से रज्जो को, अपने बचपन को, अपनी अव्वलीन मोहब्बत को बंगाल के जादू का शिकार होते देखता रहा। ढाका की जिंदगी अब ऐसे समंदर की तरह बज़ाहिर पुरसुकून हो रही थी जिसमें बहुत जल्द बहुत बड़ा ज्वार भाटा उठने वाला हो। दिन को खामोशी तारी रहती और संगीनों के साए में कारोबार जिंदगी भी जैसा तैसा चल ही रहा था। लेकिन अंधेरा फैलते ही धमाकों का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। यहाँ हिफाजती इक़दामात पर मामूर जवानों को रोजाना रात को एक लंबी और थका देने वाली नफ्सियाती लड़ाई का सामना होता था। बाजार की किसी नुक्कड़ से, गली के किसी मोड़ पर, गुंजान इलाकों से गुजरते किसी मकान की बैल्कनी से एक बम उछलता हुआ आता, जोरदार धमाका होता, एक दो जवान शहीद हो जाते और दो चार जख्मी हो जाते। उन्हें अपने दिफा में गोली चलाने से भी एहतराज बरतना पड़ता था, क्योंकि किसी भी बेगुनाह शहरी के जद में आ जाने का खतरा सर पर मंडलाता रहता। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स की तरफ से सख्त अहकामात थे कि बगैर इजाजत इलाका कमांडर के हम किसी भी मकान में घुसकर उसकी तलाशी नहीं ले सकते। इस हद से बढ़ी हुई एहतियात पसंदी ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया और आगे चलकर यही एहतियात पसंदी हमारी तबाही के ताबूत में आखिरी कील बनकर ठुक गई, क्योंकि भारतीय छाता बरदार फौज को जिसने ढाका पर लैंडिंग की थी, मकामी आबादी ने अपने घरों में छुपाकर खुफिया रास्तों के जरिए हम पर हमला आवर होने के मौके फराहम किए थे। रात को मेस में खाना खाते हुए मेरे अर्दिली ने किसी मुलाकाती की आमद का मुजदा सुनाया। उन हालात में किसी मुलाकाती की आमद हमारे लिए वाकई मुजदा बन जाती थी। इस तरह हमें माहौल की यकसानियत से कुछ हद तक तो छुटकारा नसीब हो जाता था। मैंने जल्दी जल्दी दो चार निवाले निगले और अपने कमरे में पहुंचा तो एक नौजवान जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी मेरी चारपाई पर बैठा एक अंग्रेजी रिसाले की वर्करदानी कर रहा था। मेरी आहट पर उसने नजरें ऊपर उठाई तो मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, उस्मान भाई, अली भाई कहकर उसने बाहें फैला दी। हम दोनों एक दूसरे से दीवानावार लिपट गए। कलकत्ते के बाद ये हमारी पहली मुलाकात थी। उस्मान के सर पर बंधी हुई पट्टी की तरफ इशारा करके मैंने दरियाफ्त किया, खैरियत? वो बोला, कुछ नहीं, बस 6 टांके लगे हैं। किस्मत अच्छी थी कि गोली फिसलती हुई निकल गई, वरना तो कोई कसर बाकी नहीं रही थी। और जहां अब पट्टी बंधी है वहां आपको रोशनदान बना दिखाई देता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, कब वापस लौटे? वो बोला, आज, अभी, शायद कल परसों तक फिर हमें वापस जाना होगा। हम दोनों ने ही कलकत्ते के मुताल्लिक कोई गुफ्तगू न की, क्योंकि अब उस्मान को मेरे बिजनेस के तमाम आदाब से आगाही हासिल हो चुकी थी और वो बखूबी जानता था कि कौन सी बात का जवाब मेरे पास है और किस बात का नहीं। मैंने भी बजाय जंगी सूरत हाल पर तबसरा करने के लिए उससे आम गुफ्तगू करने को ही तरजीह दी, लेकिन कब तक? बिलाखिर घूम फिर कर हम दोनों उस बेरहमाना मौजू की तरफ आ गए कि सिवाय इसके कहने सुनने को और रह ही क्या गया था। रात गए तक उस्मान छावनी में मेरे पास रहा। रात को जब उस इलाके की तरफ एक पेट्रोल
पेट्रोल पार्टी गश्त करने गई तो मैंने उसे भी उन लोगों के साथ भेज दिया, क्योंकि इस हालत में उसका ज्यादा देर तक बेआराम रहना सेहत के लिए मुज़िर था। मैंने उसे अगले दिन ढाका में मौजूद रहने की सूरत में सुबह मिलने का वादा किया। उसकी ख्वाहिश थी चूंकि हम काफी देर बाद इकट्ठे हुए हैं, इसलिए दोपहर का खाना कम से कम इकट्ठे खाएं। खैरियत गुजरी कि उस रात मेरी कोई इमरजेंसी ड्यूटी न लगी। सिर्फ रात के आखिरी पहर मुझे गश्त पर निकली पेट्रोल पार्टियों की फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी थी। सुबह अपने अफसरान को अपने अगले ठिकाने की इत्तला देकर, ताकि मेरे लिए इमरजेंसी पैगाम की सूरत में वो लोग मुझसे वहां राब्ता कायम कर लें, मैं उस्मान के घर की तरफ रवाना हो गया। जीप मैंने हस्बे साबिक गली की नुक्कड़ पर ही खड़ी कर दी थी और खुद वहां से उतरकर पैदल ही उनके घर की तरफ चल दिया। घर से कुछ फासले पर ही मैं घर के बाहर हुजूम देखकर ठिठक गया। या इलाही खैर, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला और मैं तेजी से हुजूम के दरमियान रास्ता बनाता उस तरफ चल दिया जो मेरे एहतराम में एक तरफ सिमटने लगा था। क्या बात है, क्या हुआ? मैंने दरवाजे के बाहर सिसकियां लेते एक रजाकार से दरियाफ्त किया जो उस्मान के साथ कई मार्कों में हिस्सा ले चुका था। उसने रुंधे हुए गले से कहा, चाचा को मार डाला मुक्ति बाहिनी ने। क्या? हैरत से मैं उसका मुंह देखने लगा। यस सर, यकीन नहीं आता तो जाकर देख लीजिए। एक बूढ़े बिहारी ने मुझे कंधे से तकरीबन झंझोड़ते हुए खासे तंजिया लहजे में कहा। उनके ख्याल में जैसे उस्मान के वालिद की मौत भी हमारी लापरवाही से वाक़ हुई थी। मैंने दरवाजा खोला। राहदारी में उस्मान पर नजर पड़ी। चाचा की लाश वहीं रखी थी। चारपाई के पाए से लगी माँ बेटी उस पर नौहा कुना थी। लाश के मुंह पर कपड़ा पड़ा था। मुझ पर नजर पड़ते ही उस्मान अली भाई कहकर तेजी से आगे बढ़ा और मुझसे लिपट गया। वो मर्द आहन जो मौत की आंखों में आंखें डालकर हमारे संग संग एक तवील अरसे से मौत की शाहराह का मुसाफिर था, जो बढ़ चढ़कर हर खतरनाक मुहिम के लिए खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया करता था, जिसकी आंखों के सामने सैकड़ों लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे थे, जो खुद कई मर्तबा मौत के मुंह से बाल बाल बच निकला था। आज वही बिहारी वतन परस्त बच्चों की तरह सिसकियां लेकर मेरे गले से लिपटा रो रहा था। जालिम मुक्ति बाहिनी के दरिंदे बिलाखिर अपने इंतकाम की प्यास किसी हद तक बुझाने में कामयाब हो चुके थे। उस्मान के हाथों उन्होंने बार बार जिक उठाई थी। वो न जाने कब से इस मौके की तलाश में थे कि उससे अपना इंतकाम लें। वो दरिंदे उस्मान जैसे हर वतन दोस्त ही कि नहीं, उसके पूरे पूरे कुंबे के खून के प्यासे थे। उस्मान ने मुझे रोते हुए आहों और सिसकियों के दरमियान बताया कि रात चाचा इशा की नमाज पढ़ने हस्बे मामूल मस्जिद में गए थे। जब काफी देर तक वो वापस न आए तो घर वालों को फिक्र दामनगीर हुई, लेकिन उस्मान ने उन्हें तसल्ली करवा दी, क्योंकि चाचा का ये मामूल था कि वो नमाज के बाद नवाफिल पढ़ते और तमाम नमाजियों के घरों को रुखसत होने के काफी देर बाद घर वापस लौटते। रात करीबन 11 बजे उस्मान खुद अपनी राइफल लेकर बाप को ढूंढने निकला। मस्जिद को उस वक्त इमाम साहब ताला डालकर सो रहे थे। उसने मोहल्ले के कुछ रजाकार साथ लिए और इर्द गिर्द इलाके को खंगालना शुरू किया, लेकिन चाचा न मिल सके। मायूस होकर वो लोग घरों को लौट गए। मुक्ति बाहिनी ने अब तक 2-3 मरतबा उस्मान के घर पर हमला किया था, लेकिन सिवाय एक हमले के जब अमित सरकार वहां घुस आने में कामयाब हो गया था, उन्हें कोई और कामयाबी नसीब न हुई और उन्होंने इब्तिदाई हमले ही में ऐसी मुंह की खाई कि दुम दबाकर भाग निकले। उसके बाद से वो लोग उनकी ताक में थे। उनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह उस्मान या उसके वालिद जिंदा हाथ आएं तो उन्हें अजियतें देकर मौत की नींद सुला सकें। बड़ी सोच विचार के बाद बिलाखिर उनके हाथ उस्मान के वालिद की ये कमजोरी लगी कि वो रात को बहुत देर गए मस्जिद से वापस लौटते हैं, जबकि सरे शाम ही वहां सन्नाटा छा जाता था और भरे पूरे बाजारों में भी कोई बाहर निकलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उन्होंने उसी मौके को मुनासिब जाना और मुक्ति बाहिनी के 2-3 आदमी नमाजियों के भेस में वहां चले आए। हर बंगाली को शक की निगाह से तो देखा नहीं जाता था, ना ही उस बेचारे बूढ़े के वहम गुमान में ये बात थी कि वो नमाजी दरअसल मौत के फरिश्ते हैं। नमाज के बाद वो लोग वहीं मस्जिद में छुपकर उसकी वापसी के मुंतजिर हो गए। जब उस्मान के वालिद नमाज पढ़कर हस्बे मामूल अपने नवाफिल और वज़ाइफ मुकम्मल करने के बाद बाहर निकले तो उन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती अगवा कर लिया। बेचारा धान पान सा बूढ़ा जो पहले ही मुसलसल सदमे और जहनी अजियतें बर्दाश्त करके अधमुआ और जिंदा दरगोर हो रहा था, उन मुश्तंडों का क्या खाक मुकाबला करता। वो लोग उसे कंधे पर लादे बेहोशी की हालत में उठाकर खुफिया रास्तों से बाहर निकल गए। ऐसे खुफिया रास्ते वो अपना हर हमला शुरू करने से पहले फरार होने के लिए चुन रखते थे, क्योंकि ढाका के चप्पे चप्पे पर या गलियों बाजारों में पहरा देने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा फौज नहीं थी। वहां तो बमुश्किल सरहदों पर दुश्मन से निपटा जा रहा था। एक एक कंपनी को मुसलसल कई रोज तक लड़ना पड़ता था। अंदरूनी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज इंतहाई नाकाफी थी। सारी रात खूंखार भेड़िए उस बेकस और बदबख्त बूढ़े बिहारी पर, जिसका जुर्म यही था कि वो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वाला है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे और सुबह उसकी मस्ख शुदा लाश महल्ले के बाहर फेंक गए। चाचा का चेहरा अजियतें दे देकर उन्होंने इस कदर बिगाड़ दिया था कि चंद लम्हों के लिए भी उस पर नजर नहीं ठहरती थी। आंखों की जगह 2 गड्ढे नजर आ रहे थे। होंठ और कान काटे हुए और गायब थे।
ऐसी दरिंदगी और बर्बरियत इससे पहले देखने में नहीं आई थी। लाश के गले पर रस्से से घसीटने के निशान बड़े वाज़े और उभरे हुए दिखाई दे रहे थे। उसके साथ ही बंगाली जबान में लिखा एक रुक्का उसकी लाश पर रखा था, जिसका तर्जुमा कुछ यूं था, अगर खैरियत चाहते हो तो अपनी बहन और माँ समेत हथियार डालकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो, वरना याद रखना तुम तीनों के साथ इससे भी ज्यादा बदतरीन सलूक किया जाएगा। इस रुक्के में हथियार डालने और पेश होने के लिए किसी जगह की निशानदही नहीं की गई थी, लेकिन हम सब बखूबी जानते थे कि उन्हें हर मुहिब वतन पाकिस्तानी खुसूसन बिहारियों के पल पल की खबर रहती है। अगर उस्मान लड़ाई से हाथ खींच लेता तो उन्हें यकीन आ जाता और वो अपने जराए से उसे हाजिर होने की जगह की निशानदही भी कर देते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।